Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 9th class students. How are you? Hope you all are fine and doing great. We are studying unit number 2, binary system. In last lesson we have learned number system and how to convert one system to another system. We have learned 3 systems. Can you name them? First number system which we have learned, that is binary number system. Second type is decimal number system, and third type is hexadecimal number system. And we have also make conversion of this system. This is your home task. Today we revise the topic of number system conversion, and that's your home task. These are questions, you have to practice them. Which number this system is this? This is decimal number system, and you have to convert into binary and as well as hexadecimal number system. This number system is hexadecimal number system, and you have to convert into binary and decimal number system. And this number system is binary number system, and you have to convert into hexadecimal and decimal number system. Got it? So let's start today's practice. The first number system which we revise today, that is hexadecimal number system. Okay student, can you tell me what are the hexadecimal number system? Hexadecimal number system are those number system which consist of 16 digits. Can you tell me what are these 16 digits? Very good. These are from 0 to 9 and then A, B, C, D, E and F. So first conversion, that is the hexadecimal, and we have to convert into binary number system. In which system we have to convert? Binary number system. In last lesson we have learned that one hexadecimal is equivalent to 4 binary digit. हमें लास्ट लेसन में पढ़ा था ना कि हमारा जो हमारा हेक्सा का नंबर होता है वो बाइनरी के 4 वैल्यूज़ के बराबर होता है. सो इसके लिए हमने क्या किया था? इसके लिए हमने एक टेबल बनाया था. इफ यू रिमेंबर, वो टेबल क्या था हमारे पास? दैट्स द टेबल इन विच वी राइट ऑल डेसिमल नंबर सिस्टम हियर. हमने ये तमाम डेसिमल नंबर सिस्टम यहाँ पर राइट कर लिए थे और हमने फिर इनके बाइनरी इक्वलेंट राइट किए थे. कैसे बाइनरी इक्वलेंट राइट किए थे? हमने बताया था आपको कि जो हेक्सा का 1 डिजिट होता है वो बाइनरी के 4 डिजिट्स के बराबर होता है. तो हमने 4 डिजिट्स को यहाँ पर मेंशन कर दिया. उसके बाद जो हमने लेफ़्ट राइट साइड से स्टार्ट किया था, कैसे 0 1 0 1 सो ऑन, देन 0 0 1 1 0 0 1 1, देन 4 0 4 1 4 0 एंड 4 1, देन 8 0 एंड 8 1. सो इन सच अ वे वी कैन फाउंड कि हमारे पास जो एक हेक्सा का नंबर था उसके 4 हमारे पास बाइनरी इक्वलेंट फाइंड आउट हो गए. अब हमारे पास पूरी एक वैल्यू दी हुई है हेक्सा की. ये पेज हम यहीं पर राइट करते हैं ताकि हमें फिर इसके इक्वलेंट मालूम करना आसानी हो जाए. सो हमारे पास ये पूरा हेक्सा नंबर दिया हुआ है 758D. हमने 758D को सेपरेटली राइट कर लिया. अब हम इनके बाइनरी इक्वलेंट देखेंगे. फर्स्ट हेक्सा का नंबर क्या है? 7. So where is 7? Here we have 7, and what's his binary equivalent? 0 1 1 1. So I write in front of 7 0 1 1 and 1. The next number is 5. Where is 5? Here we have the 5, and what's his binary equivalent? 0 1 0 1. So I write 0 1 0 1. ठीक है, binary equivalent of 5 hexadecimal is 0 1 0 1. Now where is 8? 8. Here we have 8. What is binary equivalent? 1 0 0 0 and D. D 1 1 0 1. So ये तो हमने इंडिविजुअल हर एक नंबर का बाइनरी इक्वलेंट मालूम कर लिया. अब हम इनको मर्ज करके लिखेंगे. सेम हमारे पास वो सीक्वेंस होनी चाहिए. फर्स्ट 7 है तो पहले हम 7 का बाइनरी इक्वलेंट लिखेंगे, दैट इज़ 0 1 1. 5 का बाइनरी इक्वलेंट है 0 1 0 1. 8 का इक्वलेंट है 1 0 0 और D का इक्वलेंट है 1 1 0 1. सो इट्स बाइनरी. सो बेस 2 आप प्लेस कर देंगे. ठीक है. अब नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज 16.
Base 16 means hexa, we have to convert into decimal number system. So how we convert into decimal number system? We have to convert hexa into decimal by multiplying each number by 16. हर एक नंबर को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे. 7 मल्टीप्लाई बाय 16, देन मार्क प्लस साइन. ठीक है, हम हर नंबर को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में प्लस का साइन मार्क करेंगे. 7 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस d मल्टीप्लाई बाय 16. क्या किया हमने? 7 मल्टीप्लाई बाय 16, 5 मल्टीप्लाई बाय 16, 8 मल्टीप्लाई बाय 16 एंड d मल्टीप्लाई बाय 16. और इस तरह हमने इनका मालूम कर लिया और बीच में हमने प्लस साइन मार्क कर दिया. गॉट इट? अब हम क्या करेंगे? ये तो हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया. सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? हम 16 पे पावर प्लेस करेंगे. ये यूनिट था तो इसकी पावर 0, 1, 2, 3. ठीक है, 16 पे पावर स्टार्ट करेंगे 0 एंड पे सो ऑन आ जाएगा हमारे पास. अब हम क्या करेंगे? हम पावर को रिजॉल्व करेंगे. 16 पावर 3 मीन्स 16 पावर 3 मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 16 3 टाइम. ठीक है, 3 टाइम हमने 16 को मल्टीप्लाई करना होगा. 16 को, फिर 16 को अगेन 16 के साथ. 16 को जब 16 से मल्टीप्लाई किया दैट इज़ 256. 256 को अगेन 16 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ 4096 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 2. 16 पावर 2 मीन्स 16 स्क्वायर मीन्स 16 मल्टीप्लाई बाय 16 एंड 16 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ 256. मल्टीप्लाई 8 एज इट इज़, मल्टीप्लाई 16 पावर 1 मीन्स 16 एंड d की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? ये देखिए टेबल में हमारे पास व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ d. देखिए हेक्सा 9 तक स्टार्ट हो ख़त्म हो जाता है. उसके बाद हम अल्फ़ाबेट्स को कंसीडर करते हैं A B C D E F. सो यहाँ पर A की वैल्यू 10, B की वैल्यू 11, C 12, D 13. 13 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 0 मीन्स किसी भी नंबर की पावर 0 होती है दैट इज़ इक्वल टू 1. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. 7 को 4096 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ 28,672 प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 256 से. तो मल्टीप्लाई करें जल्दी से 5 को 2 के साथ. आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ 1280 प्लस 8 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे. 16 8 ज़ा 128 एंड प्लस 13 1 ज़ा 13. अब हम इन सब को ऐड कर लेंगे. यूज़ कैलकुलेटर फॉर दिस पर्पज़. द आंसर विल बी 30093. So this is decimal number system. So we place the base of decimal number system here. Got it? ठीक है, ये तो हमारा सिस्टम था हेक्सा जिसको हमने कन्वर्ट किया बाइनरी में और फिर कन्वर्ट किया हमने डेसिमल में. बाइनरी में कन्वर्जन के लिए हमने बाइनरी का टेबल यूज़ करेंगे और हेक्सा को डेसिमल में करने के लिए 16 से मल्टीप्लाई करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास जो सिस्टम है दैट इज़ बाइनरी नंबर सिस्टम. अब हम बाइनरी नंबर सिस्टम को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे फिर हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा याद रखिएगा हमें कभी भी किसी भी सिस्टम से हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो हम हमेशा मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस अप्लाई करते हैं. जैसे हमने हेक्सा को हमने जब डेसिमल में मल्टीप्लाई किया था तो हमने 16 से मल्टीप्लाई किया था. अब बाइनरी को जब हम डेसिमल में करेंगे तो हम ईच नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ. प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2. देन प्लेस द पावर 0 1 2 3 एंड 4. ये पूरी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? 0. 2's पावर 3 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 to the 4, 4 to the 8. ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 प्लस ये पूरी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0 प्लस 2 की पावर 1 मीन्स 1, 1 1 ज़ा 1. सो इट इज़ 9. ये 9 हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम के इक्वलेंट है. अब हम हेक्सा को देखेंगे.
हेक्सा कितने बाइनरी डिजिट्स के बराबर होता है? 4 बाइनरी डिजिट्स के बराबर होता है। तो हम 4 की पेयरिंग कर लेंगे, 1 2 3 4, ये 4 नंबर रह गए और हमारे पास 0 अकेला रह गया। तो हम इसको 4 डिजिट करने के लिए क्या करेंगे, इसके आगे हम 3 0 ऐड कर देंगे, तो ये भी 4 डिजिट हो गया। अब हम देखेंगे 4 0 टेट्रा 4 बाइनरी टेबल के कौन से नंबर के बराबर है? दैट इज इक्वल टू 0। सो हम इसकी प्लेस पर क्या राइट करेंगे? 0। अब हम देखेंगे 1001 किसके इक्वलेंट है? 1001 9 के इक्वलेंट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 9, यानी कि ये बाइनरी डेसिमल के कौन से नंबर के इक्वलेंट है? 9 के इक्वलेंट है। गॉट इट? ये कौन सी कन्वर्जन थी? दैट इज बाइनरी नंबर को हमने कन्वर्ट किया पहले डेसिमल में, देन हेक्साडेसिमल में। द थर्ड नंबर सिस्टम इज डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम को हम पहले कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में और उसके बाद हम इसको कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम डेसिमल से किसी सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो हमने एलसीएम वाला प्रोसेस अप्लाई करना है। अब हम कैसे एलसीएम वाला प्रोसेस अप्लाई करेंगे? पहले हम 16 को पहले 429 ये नंबर है हमारे पास, ठीक है। इस नंबर को हमने पहले कन्वर्ट करना है बाइनरी में। बाइनरी में कन्वर्जन के लिए हम क्या करेंगे? हम इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे? 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 18, 1 इज रिमाइंडर। 2 1 ज़ा 2, या 2 10 ज़ा 20, 2 2 और ये 1 यहाँ पर आ गया, 2 7 ज़ा 40, 0 रिमाइंडर। 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 1 रिमाइंडर। आगे 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 1 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 0 रिमाइंडर। 2 6 ज़ा 12, 1 रिमाइंडर। 2 3 ज़ा 6, 0 रिमाइंडर एंड देन 2 1 ज़ा 2 और 1 रिमाइंडर। इसको राइट करने का प्रोसेस कैसे था हमारा पास? फ्रॉम टॉप टू बॉटम टू टॉप, इस तरह राइट करेंगे। सो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है? फर्स्ट नंबर हमारे पास है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करने के लिए राइट करना 1 1 0 1 0 1 1 0 1, और ये कौन से नंबर है? बाइनरी है, तो इसकी बेस क्या आ जाएगी? 2। अब यहाँ पर आ जाए आप। अब हम इसको, हमारे पास कौन सा सिस्टम है? ये हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? हेक्सा में। सो वी टेक एलसीएम ऑफ 16 429 है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे 42। 16 का टेबल रीड करें, 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, तो हम 32 में से 42 को 32 में से माइनस करेंगे, 10 रिमाइंडर, तो ये क्या बन गया? 109, यानी कि 109। अब 16 6 ज़ा क्या होता है हमारे पास? 16 6 ज़ा होता है 96। तो हमारे पास जब हम 96 109 में से 96 को माइनस करेंगे तो क्या रिमाइंडर हो जाएगा? 13। अब 16 अगेन हमारे पास आ गया, 16 1 ज़ा 16, 16 को माइनस करें हमारे पास 26 में से, तो क्या बच गया हमारे पास? 10। अब हमारे पास जो ये आंसर आया है दैट इज़ लेस देन 16, तो यही हमारे पास वाइंड अप हो जाएगा। अब हम राइट देखेंगे कि क्योंकि हम हेक्सा में कन्वर्ट कर रहे थे, तो हेक्सा में ना 10 होता है ना 13 होता है। 10 होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है? वो A के इक्विवेलेंट होता है। और 13 किसके इक्विवेलेंट होता है हमारे पास? 13 हमारे पास इक्विवेलेंट होता है C के। देखिए 10 हमारे पास हो गया इक्विवेलेंट A, 11 B, 12 C, 13 D के, सॉरी D के इक्विवेलेंट होता है हमारे पास ये। तो हम कैसे राइट करेंगे? 1 A D, ठीक है, और इसकी बेस कितनी हो जाएगी? 16। गॉट इट? So you have to practice all of these questions which I have mentioned in the starting of your lecture. That's your homework. Again I am displaying in front of you. You have to practice all these questions at home, and you also learn the definition of hexadecimal number system, binary and
डेसिमल नंबर सिस्टम. Till next lecture, fi amanillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.